رات گزر گئی۔ دوسری صبح بڑی صاف و شفاف تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ برف نہ جانے کب تک گرتی رہی تھی۔ بہرحال ہوا چلنے کی وجہ سے کافی سردی ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے پوستینے اور بڑے بالوں والی ٹوپیاں پہن لیں۔ بوڑھے خان نے بھی چمڑے کا لباس پہن لیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کیا گیا۔ گھوڑوں کو بھی شہباز خان نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا، اور پھر پوری طرح چاق و چوبند ہونے کے بعد ہم نے ہتھیار چیک کیے اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ تحت نگاہ سفید سفید برف نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ سورج نکلا ہوا تھا لیکن دھوپ میں ذرا بھی حدت نہیں تھی۔ سردی شدید تھی۔ کبھی کبھی بادلوں کے ٹکڑے سورج پر آ جاتے تو سردی کا احساس شدید ہو جاتا۔ طالوت کا گھوڑا میرے گھوڑے کے برابر دوڑ رہا تھا۔ طالوت نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، عارف؟ ہوں، میں نے کہا۔ کیا بات ہے، تم کچھ الجھے ہو؟ نہیں، تمہارا خیال ہے؟ کیا یہ تبدیلی تمہیں پسند نہیں آئی؟ آئی ہے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ نہیں، تم سنجیدہ ہو۔ مجھے تو یہ مناظر بے حد پسند ہیں۔ برف پوش پہاڑ، خوبصورت اور خطرناک راستے، شہروں کی بنسبت کتنے پرسکون ہیں۔ ہاں، لیکن ہم جس مسئلے میں الجھ گئے ہیں میرا خیال ہے طویل نہ ہوگا۔ بڑے میاں کا کام ہو جائے تو انہیں چھٹی دے دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کا کام آسان نہیں ہوگا۔ ہم لوگ آسان کاموں کے عادی بھی نہیں ہیں۔ بڑے میاں بھی کیا یاد کریں گے؟ طالوت نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ ایک درے سے گزر کر ہم بلندی کی طرف چل پڑے۔ بوڑھے شہباز خان کی نگاہیں دور دور تک جائزہ لے رہی تھیں۔ چاروں طرف سنسان پہاڑیاں خاموش کھڑی تھیں۔ ہم بلندی طے کرتے رہے، لیکن جو ہی ہم سرے پر پہنچے اچانک تینوں اچھل پڑے۔ تقریباً 25-30 کے قریب گھڑ سوار بالکل سامنے سے آ رہے تھے۔ سب کے سب مسلح تھے اور ان کی قیادت ایک دیو پیکر انسان کر رہا تھا۔ اس نے بڑے بالوں والی ریچھ کی کھال کا چست کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کندھے سے رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کا اس طرح آمنا سامنا ہوا تھا کہ ہم ٹھٹک کر رہ گئے۔ شہباز خان نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور پھر اس کے منہ سے غراہٹ نکلی۔ دولت خان؟ کون سا ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ مگر نہیں، دولت خان ابھی تک اتنا جوان نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً سرتاج خان ہے، باپ کا ہم شکل۔ دوسری طرف بھی گھوڑے رک گئے تھے۔ دیو پیکر انسان کا ہاتھ پیٹی کے ریوالور پر پہنچ گیا اور پھر اس کی بھاری آواز ابھری، کیا یہ تم ہو شہباز خان؟ ہاں، میں شہباز خان ہوں۔ کیا تو دولت خان کا لڑکا ہے؟ ہاں، میرا نام سرتاج خان ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، بہت جلد تو میرے سامنے آ گیا سرتاج خان۔ شہباز خان نے بھی پستول پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن میری نگاہیں سرتاج خان کے پیچھے موجود لوگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ سب نے رائفلیں اتار لی تھیں اور پوری طرح تیار تھے۔ توریز خان کو تو نے قتل کیا ہے شہباز خان؟ سرتاج خان نے پوچھا۔ ہاں، اور گلباگ بھی میرے ہی ہاتھوں کتے کی موت مارا گیا ہے۔ شہباز خان نے فخری انداز میں کہا۔ اوہ، تو نے گلباگ کو بھی قتل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میری آدمی کی اطلاع درست تھی؟ سرتاج خان بھیڑیے کی طرح گرایا۔ بالکل درست، شہباز خان نے کہا۔ تو نے ان دونوں کو کیوں قتل کیا شہباز خان؟ سرتاج نے پرسکون لہجے میں کہا، اس لیے کہ یہ تیرے ساتھی تھے۔ دولت خان سے میری پرانی دشمنی ہے اور اب میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ اتنے طویل عرصے تک تیرا خون کیوں سرد رہا شہباز خان؟ سرتاج نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وقت کا انتظار تھا، اب وقت آ گیا ہے۔ اس کا ثبوت دونوں لاشیں ہیں جو دولت خان کے پاس پہنچ جائیں گی، لیکن تیسری لاش دیکھ کر دولت خان کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ وہ لاش اس کے بیٹے سرتاج خان کی ہوگی۔ اتنی ہی خوشی جتنی مجھے رحمان خان کے خون آلود کپڑے دیکھ کر ہوئی تھی۔ خوب خوب، سرتاج خان وحشیانہ انداز میں بولا۔ پھر وہ ہم دونوں کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کون ہے شہباز خان؟ ان غریبوں کو تو کہاں سے پکڑ لایا ہے؟ میرے ساتھی، میرے مددگار، کرائے کے ہیں؟ سرتاج خان مذاق اڑاتے ہوئے بولا، جیسے بھی ہیں تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے کافی ہیں۔ کیا بیٹے کی موت نے تیرا دماغ بھی خراب کر دیا ہے بوڑھے شہباز؟ سن، میں تیرے ساتھ کچھ رعایت کرنا چاہتا ہوں۔ سرتاج خان بزدل نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم صرف 3 ہو اور میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں۔ خود کو میرے حوالے کر دے، میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو قتل نہیں کروں گا، بلکہ تجھے اپنے باپ کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے تیرے بڑھاپے پر رحم آتا ہے۔ ہاں، میرا باپ تیرے ساتھ جو سلوک کرے اس میں میں دخل نہیں دوں گا۔ واقعی یہ بے حد شریف آدمی ہے شہباز خان، تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا یہ مجھ سے جنگ کرنا پسند کرے گا؟ اچانک طالوت نے کہا۔ سرتاج خان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس سے قبل کہ شہباز خان کچھ بولے، سرتاج خان گھوڑے سے اترتے ہوئے بولا، اگر تو مکاری سے کام نہ لے شہباز خان، تو میں تجھے پٹھانوں کی ایک رسم یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کیسی رسم؟
शहबाज खान ने बेसाख्ता पूछा। अगर कोई किसी एक फर्द को ललकारे और दूसरा उसे कबूल कर ले तो सिर्फ 2 आदमियों में जंग होती है। इस झींगे ने मुझे ललकारा है, क्या तू मुझे इसे जंग करने की इजाजत देगा? शहबाज खान जरूर इजाजत देगा, तालूत ने भी घोड़े से उतरते हुए कहा। लेकिन तू अपने आदमियों से भी कह दे कि वो बदअहदी ना करें। पठान बदअहद नहीं होते, सरताज खान ने कहा, और फिर वो अपने आदमियों की तरफ मुड़कर बोला, अगर शहबाज खान की तरफ से मक्कारी ना की जाए तो तुम लोग खामोश रहोगे। मैंने शहबाज खान के चेहरे पर किसी कदर बौखलाहट देखी। उसे एहसास था कि सरताज खान और तालूत का कोई मुकाबला नहीं था। सरताज खान फील पैकर था और तालूत उसके सामने मच्छर। तेरा झगड़ा मुझसे है, इससे नहीं, मैं तुझसे मुकाबला करूंगा, शहबाज खान ने कहा। तू बूढ़ा आदमी है शहबाज, और मैं तुझे कत्ल करने की बजाय जिंदा गिरफ्तार करके अपने बाप की खिदमत में तोहफातन पेश करूंगा। मैं तुझसे जंग नहीं करूंगा, इसे लड़ने दो शहबाज खान, मैंने शहबाज खान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और शहबाज खान खामोश हो गया। लेकिन उसके चेहरे से सख्त ही जान और इस्तराब अयां था। हाँ जवान, क्या तू अपनी बात पर कायम है? सरताज खान ने मुस्कुराते हुए तालूत को देखा। बिल्कुल, लेकिन इस जंग का नतीजा क्या होगा? हम दोनों में से एक की मौत। उसके बाद? तालूत ने पूछा। उसके बाद मैं इन दोनों को गिरफ्तार करके अपने बाप के पास ले जाऊंगा। और अगर तुम मारे जाओ सरताज खान, तब? सरताज खान ने मुस्कुराते हुए कहा, तब फिर मेरे आदमी यहां से 500 गज दूर हट जाएंगे। उसके बाद तुम लोग मुकाबला करना और उसका जो भी नतीजा जाहिर हो। ठीक है, मुझे मंजूर है, तालूत ने कहा, और सरताज खान ने घोड़े की लगाम एक आदमी के हवाले कर दी। फिर उसने उनसे पीछे हट जाने को कहा और बोला, कैसे जंग करेगा? पिस्तौल से? मजा नहीं आएगा सरताज खान, तालूत ने जवाब दिया। मगर तेरे पास तलवार नहीं है? तेरे पास है? हाँ। सरताज खान ने घोड़े की जैन से तलवार खींच ली। बस काफी है, मैं तेरी तलवार छीनकर तुझे मौका दूंगा कि तू दूसरी तलवार हासिल कर ले, तालूत ने कहा। मैं तुझे तलवार मुहैया कर सकता हूं, शुक्रिया। मैं दुश्मन से तलवार मांगकर जंग नहीं करूंगा, बल्कि छीन लूंगा। क्या तू सहीउल दिमाग है? सरताज खान ने कहा। अभी पता चल जाएगा, तालूत ने कहा। उन दोनों की गुफ्तगू से शहबाज खान बहुत मुस्तरिब था। हम लोग भी पीछे हटाए थे। तब शहबाज खान ने घबराए हुए लहजे में कहा, वो गलती कर रहा है, वो हमाकत कर रहा है, वो इसका आदी है, तुम फिक्र मत करो, मैंने सुकून से कहा। मेरे दिल में इस्तराब का तसव्वुर भी नहीं था। तालूत के लिए भला सरताज खान क्या हैसियत रखता था? मैं जानता था कि तालूत तफरी कर रहा है, वरना वो बहुत कुछ कर सकता है। दोनों आमने सामने आ गए। सरताज खान ने तलवार सीधी कर ली थी। उसके फौलादी बाजू की मछलियां तड़प रही थीं। वो शायद इस फिक्र में था कि सिर्फ एक वार करे और दुश्मन की गर्दन उड़ा दे। यही उसके शायाने शान था। वरना एक नहत्ता और उसके सामने बेहैसियत इंसान, अगर उसका वार बचा गया तो खासी सुबकी होगी। चुनाचे तलवार तोलते हुए पैंतरे बदलता रहा और फिर उसने एक भरपूर वार किया। लेकिन अचानक सर पर से परवाज कर जाने वाली टोपी ने उसका जहन बांट दिया और तालूत को हिलने की जरूरत भी पेश न आई। उसने बौखलाए हुए अंदाज में टोपी देखी और सर टटोलने लगा। टोपी काफी बुलंद होकर दोबारा उसके सर पर आ पड़ी थी। मेरी हंसी निकल गई, जबकि दूसरे लोग दमबखुद थे। बहरहाल सरताज खान ने इसे इत्तफाक ही समझा था, अलबत्ता उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। अगर मुकाबिल के हाथ में तलवार होती तो वो बआसानी उस वक्त उसके सीने में भोंक सकता था जब उसने टोपी के लिए ऊपर देखा था। इस बात को वो अच्छी तरह समझ गया था और इस बार वो पूरी तरह चौकन्ना था। उसने घूमकर तलवार का दूसरा वार किया और अचानक उसके जेर जामे का बंद टूट गया। जेर जामा ढीला होकर नीचे खिसक गया और सरताज खान ने जल्दी से उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। तालूत हैरत से उसे देख रहा था। फिर उसने मस्करी अंदाज से पूछा, क्या हुआ सरताज खान, क्या पेट में दर्द हो रहा है? सिचुएशन ही ऐसी थी, सरताज खान क्या कहता। जाहिर है ये उसके दुश्मन का कारनामा तो नहीं था। ना जाने किस तरह, ना जाने कैसे ये हो गया। दूसरे लम्हे वो पलटा और फिर अपने आदमियों के पीछे चला गया। शहबाज खान ने कहका लगाया था, क्या बात है सरताज खान, क्या तुमने मैदान छोड़ दिया? अभी वापस आता हूं। जरूरियात से फारिग होने गए हो? अभी तो इसने एक भी वार नहीं किया। शहबाज खान हंसते हुए बोला, खुद मेरे पेट में कहके उबल रहे थे। तालूत मासूम सी शक्ल बनाए खड़ा था। चंद मिनट के बाद सरताज खान फिर वापस आ गया। अब उसके चेहरे पर झल्लाहट और दीवानगी तारी थी। आते ही उसने तलवार के ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। तालूत उछल उछल कर उसके वार खाली कर रहा था और फिर अचानक सरताज खान ने अपनी जगह खड़े खड़े उछलना शुरू कर दिया। उसके मुंह में बदहवासी में अरे अरे निकल रहा था। इसके बाद उसने तलवार फेंक दी और दोनों हाथों से अपना लिबास नोचने लगा। उसने ऊपर का कोट उतार कर फेंक दिया और फिर चमड़े की वास्कट भी उतार दी। साथ ही साथ वो उछलता भी जा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिबास में छिपकलियां घुस गई हों। लेकिन ऊपरी लिबास पर ही बस नहीं हुई थी, ज़ेरी लिबास में भी गड़बड़ थी। वो बौखलाए हुए अंदाज में दूसरी तरफ भाग गया। इस बार उसने एक चट्टान के पीछे पनाह ली थी। क्या ये मुकामी तरीका जंग है शहबाज खान? तालूत ने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा। ये बार बार भाग क्यों जाता है? और शहबाज खान ने जोरदार कहकहा लगाया। खुद सरताज खान के आदमी भी मुस्कुराए बगैर न रह सके थे। अब मैं किससे लड़ूं खान बाबा? तालूत ने फरियादी लहजे में कहा। और शहबाज खान ने दूसरा कहकहा लगाया। वो पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा था, लेकिन तालूत ने इसी पर बस नहीं की। वो सरताज खान के आदमियों की तरफ देख रहा था और अचानक उन लोगों के घोड़ों ने उल्टा चलना शुरू कर दिया। उनके मुंह आगे थे, लेकिन वो पीछे की सिमत दौड़ रहे थे। बहुत से सवार बौखलाकर उनसे कूद पड़े और बहुत से उन्हें पीट पीट कर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक भी घोड़ा ना रुका। कूदने वालों ने दौड़कर अपने घोड़े पकड़ लिए थे, लेकिन घोड़े थे कि किसी तौर नहीं रुक रहे थे। वो खुद भी रुकने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में उछल रहे थे, गिर रहे थे, खड़े हो रहे थे। एक अजीब सी अफरा तफरी फैल गई। घुड़सवार बुरी तरह बदहवास थे और तालूत मुंह फाड़े खड़ा था। ये सब क्या है खान बाबा? क्या ये लोग कोई मजाहिया नाटक पेश कर रहे हैं? लेकिन खान की हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं भी हंस रहा था। तब अचानक चट्टान के पीछे से सरताज खान ने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और उछलकर उस पर बैठ गया। लेकिन उसे देखकर और भी बम फट पड़ा। सरताज खान बरहना था। उसने सिर्फ एक छोटी सी खाल बदन पर बांध रखी थी, जिसे बराबर रखने के लिए वो बार बार घोड़े की लगाम छोड़कर उसे संभालने लगता था। सरताज खान निकल गया। शहबाज खान चीखा, रुक जाओ खान बाबा, वो कपड़े छोड़कर भाग गया है और मैं नंगे आदमियों से बिल्कुल नहीं लड़ सकता। उन्हें देखकर मुझे शर्म आती है, तालूत ने कहा। और फिर अचानक शहबाज खान की हंसी में ब्रेक लग गया। उसने हैरत से हम दोनों की तरफ देखा और फिर भराई हुई आवाज में बोला, मगर ये सब हुआ क्या? ये तो आप ही बताएंगे खान बाबा। तालूत जल्दी से बोला। मैं क्या बताऊं? पहले उसने पेट पकड़ लिया और भाग गया। दोबारा कपड़े उतार फेंके और फिर कपड़े छोड़कर भाग गया और उसके साथी उल्टे घोड़े दौड़ाते हुए फरार हो गए। आखिर क्यों? मुझे क्या मालूम। क्यों? आप भी तो इन्हीं इलाकों के रहने वाले हैं, तालूत ने कहा और मेरी फिर हंसी छूट गई। इन बातों का इलाके से क्या ताल्लुक? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, शहबाज खान ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। कमाल है। फिर अब हम क्या करें? सरताज खान बचकर निकल गया है, मगर वो मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आओ आगे बढ़ें। सरताज खान के कपड़े उठा लें? तालूत ने मासूमियत से पूछा। ओह हाँ, ये कपड़े दौलत खान और तासिया वालों के सामने पेश किए जाएंगे। दौलत खान का नाम ऊंचा होगा। और फिर दर हकीकत चट्टान के अकब से सरताज खान के कपड़े मिल गए, जिन्हें शहबाज खान ने एहतियात से लपेट लिया था। इसके बाद हमने घोड़े आगे बढ़ा दिए। सरताज खान और उसके साथियों का दूर दूर तक पता नहीं था। रह गया शहबाज खान, तो वो कभी कभी हमें घूरने लगता था, फिर एक ठंडी सांस लेकर सामने मुतवज्जा हो जाता था। यूं हम सफर करते रहे, लेकिन बहरहाल अब हमारी आमद की खबर सबको मिल गई होगी। लेकिन कौन किसे क्या बताएगा? एक बार शहबाज खान आगे निकल गया तो मैंने तालूत से कहा, दर हकीकत तुम पूरे शैतान हो। गलत, हम दोनों मिलकर पूरे होते हैं। मगर उसके लिबास में क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसे वहम था। रासिम अपने कमालात दिखा रहा था। बेमौत मारे गए बेचारे, उन्हें क्या मालूम कि एक शैतान उनके इलाके में घुस आया है। दरअसल मैं उसे हलाक करना नहीं चाहता। क्यों? बस तुम तो अपना दिमाग ना जाने कहां छोड़ देते हो। तुम्हारे साथ रहकर मैंने दिमाग से काम लेना छोड़ दिया है। क्यों? कोई बात दिमाग में आए तो उसके बारे में सोचूं, ना जाने तुम क्या क्या चक्कर चलाते रहते हो। गुलबाग की एक बात याद करो, मरते वक्त उसने क्या कहा था? गुलबाग ने? मैं ज़हन पर जोर देने लगा। उसने तो बहुत सी बातें की थीं। उसने कहा था कि वो बूढ़े शहबाज को एक खुशखबरी सुना सकता है, लेकिन वो उसे खुश नहीं होने देगा। हाँ, कहा था। मगर तुमने इससे क्या नतीजा अखज़ किया? कुछ भी नहीं, तालूत ने गहरी सांस लेकर कहा। और फिर मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वो खामोश ही रहा। हम बराबर मंजिलें तय कर रहे थे। सरताज और उसके आदमियों का दूर दूर तक निशान नहीं मिला था। वो बुरी तरह भागे थे और अब भी तालूत की शरारत पर बेसाख्ता हंसी आ जाती थी। तालूत मासूमियत से सफर कर रहा था। काफी देर गुजर गई। बूढ़ा खान अब हमारे बराबर चल रहा था। वो भी गर्दन झुकाए सोच में गर्क था। फिर अचानक उसने गर्दन झटकते हुए कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। क्या बात है खान बाबा? क्या तुम लोग फरिश्ते हो जो आसमान से मेरी मदद को आए हो? नहीं बाबा, हम गुनाहगार इंसान हैं। फिर ये सब क्या था? यह भी मदद के अलावा और क्या कहा जा सकता है? तुम गौर करो बाबा, मेरा और उसका क्या मुकाबला था। डर के मारे मेरी बुरी हालत थी।
झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था। मेरे तजुर्बे को चैलेंज मत मारो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर इतना ही सुकून देखा था जैसे तुम्हें यकीन हो कि तुम उसे आसानी से मार लोगे। वो मौत का सुकून था खान बाबा। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था। नहीं, तुम इतने बुज़दिल नहीं हो, तुमने खुद उसे ललकारा था। तो मुझे क्या मालूम था कि वो तैयार ही हो जाएगा, तालूत ने रो देने वाले अंदाज में कहा। खुदा ही बेहतर जानता है, शहबाज खान ने गर्दन छटकते हुए कहा और फिर सामने देखते हुए बोला, इस दर्रे में दाखिल होने के बाद हम तासिया में दाखिल हो जाएंगे। क्या इस दर्रे का इख्तिताम तासिया पर होगा? नहीं, उसके बाद कोहे ताहमंद आएगा और कोहे ताहमंद के अंदर से एक सुरंग तासिया में जाकर खुलती है। बहुत खूबसूरत जगह है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तासिया के कारीगरों ने एक बड़ा कारनामा दिखाया है। वो क्या? कोहे ताहमंद से गिरने वाले आबशार को काटकर सुरंग के जरिए अंदर ले गए हैं और फिर वो पानी तासिया के खेतों को सैराब करता है। खूब, वाकई उम्दा जगह है, मैंने शहबाज खान की बातों पर गौर करते हुए कहा। लेकिन तालूत के कान खड़े थे, वो कुछ और ही सुन रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और चौंक पड़ा। क्या बात है, मैंने कहा। लेकिन मेरा जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि बहुत से धमाकों की आवाजें सुनाई दी और गोलियों ने हमारे इर्द गिर्द पत्थर उड़ाने शुरू कर दिए। हम दर्रे के अंदर दाखिल हो चुके थे और ये गोलियां यकीनन दर्रे के दोनों तरफ से आ रही थीं। भागो, खतरनाक जगह है, बूढ़ा शहबाज चीखा और उसने अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। हम दोनों ने भी अपने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी। तालूत ना जाने पहले से बाखबर हुआ था या नहीं, लेकिन इस खतरनाक सिचुएशन में बुखला गया था। बिलाशुबा दोनों तरफ से आने वाली गोलियां बासानी हमें चाट सकती थीं, लेकिन आगे दौड़ने या पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों तरफ की कैफियत यकसां थी, चुनाचे आगे दौड़ना ही बेहतर था। गोलियां चलाने वाले अनाड़ी नहीं थे, लेकिन इसे क्या कहा जाए कि बहुत सी गोलियां हमारे लिबास को छूती हुई निकली थीं, लेकिन हम सिर्फ चंद सूत के फासले पर महफूज थे। शहबाज का घोड़ा सबसे आगे था और वो बार बार पीछे मुड़कर हमें देखता जा रहा था, यहां तक कि हम दर्रे से निकल गए। गोलियां चलाने वाले बहुत पीछे रह गए थे। दर्रे से निकलकर हम खुली फिजा में आ गए। सामने ही कोहे ताहमंद था। शहबाज ने राइफल उतार ली थी और अब दांत पीसते हुए चारों तरफ देख रहा था। मैं जानता था बुज़दिल सरताज खान कोई चाल चलेगा। उसने चालाकी इसलिए की थी। शहबाज खान दांत पीसता हुआ बोला, चलो छुट्टी हुई। तालूत ने गहरी सांस ली। क्या मतलब? बड़े मियाँ का शुबा रफा हो गया, वरना वो उल्टी सीधी सोचने लगे थे। ये तो शुबा रफा होने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ 3 थे और वो 20-25। अगर हम 10-12 को मार लेते तब भी बकिया लोग हमें भून डालते। अगर बड़े मियाँ ये सोच रहे हैं तो अबे, तो सब तेरी तरह फिलॉसफर नहीं है, खामोश भी रह, तालूत ने कहा। हम दोनों ने भी शहबाज खान की देखा देखी राइफलें उतार ली थीं, लेकिन दर हकीकत अब सरताज खान के आदमी हमारे सामने आने से कतरा रहे थे। हमें दर्रे की बुलंदियों पर कोई नकलो हरकत नजर नहीं आ रही थी। वो चोर सामने नहीं आएगा, आओ अब तासिया में ही उससे मुलाकात होगी, आओ। शहबाज खान ने एक चौड़ी सुरंग के धाने की तरफ घोड़ा बढ़ाते हुए कहा। ताहमन से निकलने वाला आबशार साफ नजर आ रहा था। वैसे दर हकीकत ये इलाका बेहद खूबसूरत और सरसब्ज था। आबशार के चारों तरफ और पहाड़ी के दामन में सब्जा फैला हुआ था। आबशार काफी बुलंदी से एक फैली हुई चट्टान पर गिर रहा था और शायद चट्टान के रुख को अंदर मोड़ दिया गया था, क्योंकि आबशार का पानी चट्टान से नीचे नहीं गिर रहा था और पहाड़ ही में गायब हो जाता था। निहायत उम्दा तरकीब थी। आबशार को सुरंग के जरिए मोड़ना आसान बात नहीं थी, लेकिन इन जफाकश लोगों को देखने के बाद हैरत में कमी हो जाती थी। मुझे और तालूत को ये जगह बहुत पसंद आई थी, लेकिन अफसोस हम यहाँ सैरो तफरी करने नहीं, कश्तो खून करने आए थे, जिसकी इब्तदा शहबाज खान ने कर दी थी। गो सरताज खान से तालूत का तरीका जंग मुझे बेहद पसंद आया था। ये जंग भी थी और तफरी भी, लेकिन मैं जानता था कि तफरी आर्जी है। इस इलाके में तो कदम कदम पर गोलियां चलती हैं, कहाँ तक तफरीहात का सहारा लिया जाएगा। और फिर शहबाज खान के तेवर तो बहुत खराब थे। उनसे अंदाजा होता था कि वो हर उस शख्स को मौत के घाट उतार देगा जिसके बारे में शुबा होगा कि उसका सरताज खान और दौलत खान से कोई ताल्लुक है। वो तो आया ही इसीलिए था और तालूत पूरे तौर से उसका मददगार था। बहरहाल इन हंगामों में मेरी क्या चलती, मैं कर भी क्या सकता था। क्या तासिया में हमारा दाखला अलल ऐलान होगा? मैंने सुरंग के धाने की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, हम चोरों की तरह दाखिल नहीं होंगे, शहबाज खान सीना तान कर बोला। लेकिन सरताज खान हमारे पीछे है। वो जिस कदर बुज़दिल है तुम देख चुके हो। अब वो पीछे से ही पटाखे चलाता रहेगा। वैसे ये बात उसे बदहवास करने के लिए काफी है कि हम उसके शहर में दाखिल हो रही हैं
और उसकी बुज़दिली का राज हमारे सीने में है। उसके आदमियों को भी मालूम है। मैंने कहा, अगर एक भी आदमी पर उसे शुबा हुआ कि वो ये राज किसी और को बता देगा तो वो उसे जिंदा ना छोड़ेगा। दौलत खान के हमशक्ल ने तबीयत भी दौलत खान की सी पाई होगी। शहबाज खान ने कहा। मैं खामोश हो गया। तालूत हमारी बातों से लाताल्लुक नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे इस गुफ्तगू से कोई सरोकार ही ना हो। मैंने उसकी शक्ल देखी और मुझे गुस्सा आने लगा। उसे किसी भी किस्म के हालात की क्या परवाह हो सकती है? वो महफूज है। हाँ, अगर किसी वक्त वो हमारी तरफ से गाफिल हो जाए तो शामत तो हम दोनों ही की आएगी। लेकिन मैं ये बात तालूत से नहीं कह सकता था। बूढ़ा शहबाज तो आया ही मौत से खेलने था। थोड़ी देर के बाद हम उस अजीमो शान सुरंग के धाने के पास खड़े थे जो शहर तासिया में दाखिल होने का दरवाजा था। आबशार का पानी उसके ऊपर से गुजरकर अंदर किसी सिमत जा रहा था। उसकी आवाज की गरज जरूर महसूस हो रही थी, लेकिन वो कहीं से नजर नहीं आता था। बेहद शानदार जगह है, बिल्कुल जादुई कारनामा मालूम होता है, तालूत ने तारीफी अंदाज में कहा। इन पहाड़ों में बड़े बड़े जफाकश मौजूद हैं। वो बहुत बड़े दिमाग रखते हैं। अफसोस इन लोगों को अच्छे राहबर नहीं मिलते, इसलिए वो अपनी सलाहियतें लिए हुए कब्रों में जा सोते हैं। शहबाज खान ने कहा। या फिर आपस की दुश्मनियों में जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तालूत बोला। ये भी दुरुस्त है मेरे बच्चे। शहबाज खान ने ठंडी सांस भरी और खामोश हो गया। सरताज खान के आदमियों की नकलो हरकत अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। हम इंतजार करते रहे और फिर मायूस हो गए। ये भी हो सकता है खान बाबा कि सरताज खान सुरंग के दूसरे धाने पर अपने आदमियों के साथ हमारा इंतजार कर रहा हो और जो ही हम सिरे पर पहुंचे वो हमें गोलियों पर रख ले। मैंने कहा और शहबाज खान चौंक पड़ा। वो चलते चलते रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा। हाँ, वो लूमड़ी की औलाद ये हरकत कर सकता है। हम उसे इसका भी जवाब दे सकते हैं, इसलिए फिक्र मत करो। तालूत की आवाज सुनाई दी और मैं दांत पीस कर रह गया। हाँ, दलेर खान ठीक कहता है, हम तासिया जरूर चलेंगे। आओ, शहबाज खान ने कहा और हमने सुरंग में घोड़े आगे बढ़ा दिए। सिरों पर रोशनी थी, लेकिन हम जूं जूं आगे बढ़ रहे थे सुरंग तारीक होती जा रही थी। घोड़े भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। वो किसी कदर खौफजदा थे। गालिबन इससे कबल वो इस इलाके में नहीं आए थे। ताहम हम पामर्दी से आगे बढ़ रहे थे। हमारे सरों पर एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। बड़ा सनसनीखेज सफर था। अकब से भी खतरा था और सामने से भी। जगह भी ऐसी थी कि हम किसी तरफ से फरार नहीं हो सकते थे। बहरहाल आगे बढ़ते रहे।